I got my first job as a data analyst in 2025, and that too without a CS degree, using just basic tools like Excel, SQL, and Canva. Hello everyone, my name is Divyanshu, and in this video, I'm going to share you the exact path that I followed to become a data analyst without any experience or internship in data science field. So let's get started with this video. I'll break it down step by step, what I learned, what my resume looked like, how I applied, and how you can do the same. Also, I'm giving away the exact resume that I used to hired as a data analyst. To get that resume, check out the link in description. So let's start with a presentation where I'll be talking about everything in detail. So let's go. I come from a non-computer science background. I'm a mechanical engineering student but always was curious about data. I didn't know Python or Power BI at first, but later on I got used to it. Started with data analysis during my final year, and that too in the last sem. The only thing that I had was my communication. So that's the basic background that I had. No CS degree, was a mechanical engineering student, no coding experience, and also started data analysis in my final year. I chose data analytics because I was curious about data, Excel, and so many things. But for you, just to let you know that it is a high demanding skill, it doesn't require a lot of coding, and that too अगर आप लोगों को SQL और Python थोड़ी बहुत भी आती है, then you are good to go because सिर्फ उतनी ही चीजें आप लोगों को आनी चाहिए. Next and most important thing is that it solves the real world problem, and that too you can visualize it. For example, एक शॉपकीपर है, उसको पता लगाना है कि कस्टमर्स क्यों उसकी शॉप पर अब आना धीरे धीरे कम कर रहे हैं. So as a data analyst आपको सारे डेटा और इनसाइट्स को यहाँ पर निकालना है और पता लगाना है कि ऐसी चीज क्यों हो रही है. And for that, we are going to use data and some basic tools like Excel, SQL, Power BI, or Python, whatsoever interest you. So these are the reasons why you should choose data analytics as a career option. What I did to get this job. Now I will tell you everything step by step what I have actually followed to get this job without any experience or internship in data science field. So these are the 4 tools that I have learned. In Excel, I have mostly focused on graphs using charts, and also the most important thing that is being asked in every interview is pivot tables. So the most important thing जो कि आपको फोकस करना है एक्सेल में वो है pivot tables, and then उसके बाद आपको चार्ट्स वगैरह पे फोकस करना है, and then अगर आपके पास टाइम है और आप लोग चीज़ों को मेमोराइज करने में भी अच्छे हो तो फॉर्मूलेस पे भी फोकस करना. बाकी चीज़ें आप लोग समय के साथ देखोगे तो एक्सेल में सीख ही जाओगे. टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल, तो एसक्यूएल को पहले आपको सीखना है और उस पर ऊपर फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है. अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो एसक्यूएल में सीखा हुआ हर चीज़ आप लोग समय के साथ भूल जाओगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसक्यूएल दैट आई फील is actually creating a project on your own. Guided project बनाने में भी आप लोग को टाइम लग सकता है because SQL एक ऐसी चीज़ है जिसमें used to होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट अगर सीख लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Next is Python. So I was really scared for learning Python, but जैसे जैसे मैं इसमें थोड़ा सा और deep knowledge लेता गया, my favorite tool right now is using Python for exploratory data analysis. इसमें आप लोग बहुत ही deep में जाके data analysis कर सकते हो, and not only data analysis but you can move your career to data science if you are good with Python. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, not only cleaning of data but analysis, but also you can actually generate graph using some लाइब्रेरीज. तो सारी चीजें आप लोगों ने कर ली, बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों ने सॉल्व कर ली, लोगों के आंसर भी दे दिए, बट इस चीज को डैशबोर्ड पे शो करना इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट आप लोग को पावर बीआई जैसे टूल की जरूरत पड़ेगी. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को आना ही चाहिए वो है पावर बीआई, बिकॉज इसमें डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद जो आप लोग को खुद खुशी मिलेगी ना वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो. आप लोग क्या करने वाले हो, सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स एक जगह यहाँ पर शो करने वाले हो एक डैशबोर्ड के अंदर, जो कि एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होगा, यानी उसको आप लोग चेंज कर सकते हो. वो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग वहीं के वहीं उसका आंसर दे सकते हो. ऐसा आप लोग डैशबोर्ड क्रिएट करना है. सो दीज आर द 5 बेसिक प्रोजेक्ट, और आप लोग इससे रिलेटेड भी चीज़ें कर सकते हो या फिर आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हो. तो मैंने एक्सेल में एक सेल्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, देन मैंने गूगल शीट में भी कस्टमर का एनालिसिस किया कि वो लोग कंपनीज को क्यों छोड़ रहे हैं, वहाँ पर जाना क्यों छोड़ दिए, इसको चर्निंग बेसिकली बोलते हैं. सो इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग बना सकते हो. नेक्स्ट इज मैंने एक एसक्यूएल से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया, देन पावर बीआई का डैशबोर्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैंने मशीन लर्निंग और एआई का यूज़ करके एक मॉडल क्रिएट किया था जिसमें मेरे एक प्रोफेसर थे, उनका ही मैंने डेटा लिया था और उसको वैलिडेट किया था. सो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है अप्लाइंग फॉर अ जॉब. ये एक ऐसी चीज़ है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है. लोग यहाँ पे अप्लाई करते रह जाते हैं, एक दिन में 100 कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं बट रिस्पॉन्स हमेशा वही आ रहा है,
यू आर नॉट एलिजिबल, अनफॉर्चुनेटली, ये वो बहुत कुछ आता रहता है। क्यों आता है? बिकॉज वो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोग को फॉलो करने हैं, बिकॉज ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। सिर्फ कुछ देखा नहीं, अंधों की तरह यहाँ पे अप्लाई किए जा रहा हूँ, तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर एक रिज्यूमे बनाना है। उस रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, साथ में मैंने अपना रिज्यूमे यहाँ पर शो कर रखा है। इस रिज्यूमे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेकआउट कर लो, और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रखी हैं उस हिसाब से आप लोग भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो बेसिकली 4 चीज़ें आप लोग के रिज्यूमे में होनी चाहिए। अगर आप लोग एक फ्रेशर हो तो 1 पेज का यहाँ पे लेआउट होना चाहिए। सेकेंडली, आपको प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, सर्टिफिकेट्स पे नहीं करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सारे टूल्स और स्किल्स आप लोग की क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, जो भी मेरे स्किल्स हैं किस चीज़ में, सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसी तरीके से आपको भी मेंशन करना है। अगर आप लोगों को कोई डिफरेंट फील्ड भी हो तब भी आप लोग उस हिसाब से चीज़ें अपनी बदल सकते हो। बट ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं वो आप लोग के रिज्यूमे में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो भाई आपको अपने रिज्यूमे में काम करने की ज़रूरत डेफिनेटली है। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, भाई मैंने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है। शुरुआत मैंने लिंक्डइन से की थी, लेकिन जॉब मुझे इंडीड ने दिलाई। लिंक्डइन पे अप्लाई करते रह जाओ, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो की थी कि भाई पर्सनलाइज मैसेज, कि मैं इस कंपनी के लिए क्यों अच्छा हूँ, मुझे क्यों लेना चाहिए, मेरी क्या क्या स्किल्स हैं। काफ़ी लोग के लिए चीज़ काम की थी बट मेरे लिए नहीं की। सो मैं तो ये बोलूँगा, naukri.com पे रिस्पॉन्स आए थे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी थे, बट उन लोगों को क्या चाहिए ना, इमीडिएटली ज्वाइन करिए, मतलब अभी अभी ज्वाइन करो वरना जॉब भी। ऐसा सीन था। तो naukri.com भी मेरे लिए काम नहीं किया, बट इंडीड इज़ वॉट एक्चुअली वर्क फॉर मी। इसका बेनिफिट बहुत सिंपल है। जब आप लोग अप्लाई करते हो ना, तो 1-2 हफ्ते बाद क्या है ना, आपको एक मेल आता है कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप लोगों को एक पर्सनली मैसेज करने का ऑप्शन आता है। और बाकी प्लेटफॉर्म में देखोगे तो आप लोगों को एचआर या फिर जो भी रिक्रूटिंग टीम है उसका आप लोगों को कभी भी यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है, मतलब जिनको आप लोग जाके डायरेक्ट मैसेज कर पाओ। बट इंडीड में वो लोग खुद आपको मेल करते हैं कि इनको जाके आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो भाई ऑफ कोर्स अगर आप लोग को डायरेक्ट मैसेज करने का ऑप्शन मिल रहा है, जब आप लोग करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड सिमिलर मेरा भी केस है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मुझे सबसे ज़्यादा इंडीड से ही है। तो डेफिनेटली मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप लोग को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर सिर्फ नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई इंडीड। अपना रिज्यूमे अपलोड करो, थोड़ा बहुत डिटेल्स फिल करो, जो भी गलतियाँ वो सब सही करो, और डेफिनेटली आप लोग को रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डिड टू हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। सो अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं जो कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को स्किल सीखनी है। सारे टूल जो कि इंपॉर्टेंट है एज अ डेटा एनालिस्ट वो आपको आने चाहिए, लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, और साथ में पाइथन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद उन सारे स्किल से रिलेटेड एटलीस्ट 2 तो प्रोजेक्ट बना ही लो, और फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता टू गेट हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। ये था बेसिक सा चीज़ जो कि आप लोग को समझना है। बट काफ़ी लोग इतनी मेहनत करने में भी डर जाते हैं, बट आप लोग को दोस्तों डरना नहीं है। हर चीज़ जो कि मैं आप लोग को बता सकता था, जो भी छोटी छोटी गलतियां मैंने की, वो सब के बारे में तो ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया, बट दैट्स द path that I have actually followed to get this job as a data analyst। और मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी इंटर्नशिप नहीं। मेरे रिज्यूमे में भी चेकआउट करोगे तो वो आप लोग को वर्चुअल इंटर्नशिप देखने वाली है। वो सब कैसे मिलता है उसके रिलेटेड मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना ही समझ सकते हो। यही बेसिक स्टेप्स आप लोग को फॉलो करने और आप लोग भी एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना शुरू कर सकते हो। ओके, सो यही था मेरा पूरा प्रोसेस जो कि मैंने फॉलो किया टू गेट दिस जॉब। एंड फाइनली इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो मैं रिज्यूमे वाली बात कर रहा था, मैं आप लोग को चलो एडिटेबल रिज्यूमे जो है वो भी दे दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में यार ज़रूर रिज्यूमे के ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को सही से पता ही नहीं रहता रिज्यूमे आखिर बनाना कैसे है, एंड इसकी वजह से उन लोगों की जॉब नहीं लग पाती है। तो हर चीज़ उस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, जो भी चीज़ रिज्यूमे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी वगैरह टेलीग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आप लोग को रिस्पॉन्स कर दूंगा। लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सारी चीज़ें आप लोग के सामने ही है। मेल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।